Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you students. 10th class mathematics subject. Today we will do the exercise 2.1. As we have already started in the previous lecture, exercise 2.1, and we have done the question number 1 and 2. Today we will further move, and before moving the further question, there are some queries to some students. So first of all, we will solve that queries and questions. We will just review the question number 1. In question number 1, we have to find out the discriminant of the quadratic equation. And what was the discriminant? Discriminant आपके पास simple ये था b square minus 4ac. ठीक है. And what do we find out through discriminant? हम discriminant के जरिए हम क्या find out कर सकते हैं? हम ये find out कर सकते हैं whether the roots of the equation are rational, irrational, equal, unequal, imaginary, whatever. ठीक है. And the 4 conditions are written on your book. ठीक है. हमने 4 conditions पढ़ी थी कि when the discriminant is greater than 0 and perfect square, when the discriminant is greater than 0 but not a perfect square, when the discriminant is equal to 0, and when the discriminant is less than 0. These are the 4 conditions. ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी. It should be on your fingertips. ठीक है. तो हमने सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया. b square minus 4ac 17. It is greater than 0 but not a perfect square. तो ये आपके पास irrational होगा. ठीक है, real, irrational and unequal. minus 8 आंसर आ गया. That is less than 0. So the roots will be imaginary. फिर थर्ड में देखिए आप 0, and if it is equal to 0, the roots are real and equal. And in part number 4, the answer is, I think so, 81. Yes, 81 is a perfect square of 9. So the roots are real, rational and unequal. ठीक है, तो ये आपने ऐसा से करना है. And what we have do in question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये करना था. देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स. आपने एक तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये कि आपने डिस्क्रिमिनेंट के जरिए ये बता देना है कि उसके रूट्स किस तरह से. लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया. द आंसर इज 49 and 49 is greater than 0 and it is also a perfect square. हमने बता दिया द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल. ये तो हमने बता दिया. लेकिन क्या वाकई ही इसके रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे? सो उसको देखिए, हमने लिखा यू हैव टू वेरीफाई. तो वेरीफाई आपने कैसे करना है? यू हैव टू वेरीफाई बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग द मिड टर्म ब्रेकेज फार्मूला, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन, जो भी आपने करनी है. ठीक है, तो देखिए हमने इस पे लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac. So what is the answer? x is equal to 15 and x is equal to 8. अभी हमने ऊपर कहा ना रूट्स आर रियल, तो देखें yes they are real. 15 and 8 are real number. फिर हमने कहा they are rational. 15 and 8 rational भी हैं. And they are unequal. Yes, they are unequal. 15 and 8. Right? Same is the case with the part number 2. And we have already done this part. Part number 2 again 2x square plus 3x plus 7. तो देखिए इसमें हमने किया, सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया. b square minus 4ac. The answer is minus 47. This is less than 0. So roots are imaginary. इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है कि आंसर या तो नेगेटिव में आता है. ठीक है, अब देखिए हमने इसको वेरीफाई किया. We applied the quadratic formula and the answer is minus 3 plus square root of minus 47 by 4 and minus 3 minus 47 square. अब देखिए when there is a square root and there is a negative sign in the square root, तो वो आपको पता है कि हम उस स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ माइनस, दैट इज द अयोटा स्क्वायर. तो इट मीन्स कि इसका आंसर अयोटा में आएगा एंड अयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, यहाँ तक आपके पास हमने किया था. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now we will start the question number 3, and the question number 3 is this. For what value of k the expression this is a perfect square. आपने ये बताना है कि अगर ये जो है k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए, आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या थी? दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.
ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ओके देखें, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब भी हमने किसी की वैल्यू फाइंड आउट करती है ना, तो हम लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है कि हम उस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन ये है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, तो देखिए के की वैल्यू कब आएगी, जब हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमने पुट कर दिया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर आपके पास ए हो जाएगा, 2 इंटू के प्लस ए जो है वो बी हो जाएगा, और 4 आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपने क्या किया, वैल्यूज पुट करना शुरू कर दी। अब देखिए आपने वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। व्हाट इज, इसका स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, सॉरी ये 4 multiplied by 4 is 16 and k square. Then you will open the formula of k plus 1 whole square, a square plus b square plus 2ab minus 16k square. 4k square plus 4 plus 8. You will multiply this 4 inside the brackets. ठीक है, minus 16k square. Then you have to arrange it. 4k square minus 16k square is minus 12 plus k plus 4. Then you will take the minus common. अब जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी 12k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वो 0 ही रहेगा। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नाउ यू विल सॉल्व इट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेकेज आप करना चाह रहे हैं, आप जिस तरह से भी इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकेज कर ली। मिड टर्म ब्रेकेज करने के बाद हमारे पास क्या आया, लेट्स सी, देखेंगे 12k plus 4 and k minus 1. So what is the value of k is minus 1 by 3. ठीक है, minus 1 by 3 and k is equal to 1. So it means when k is equal to minus 1 by 3 and k is equal to 1, then आपके पास the equation will be a perfect square. तब उसका जब हम k की वैल्यू ये पुट करेंगे तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है बेटा, okay, now we have to start the question number 4, right? अब what is given in question number 4? Question number 4 में ये है, find the value of k if the roots of the following equations are equal. Again, understand the equation, understand the question कि find the value of k, अगर हमने k find out करनी है अगर इस equation के roots equal हैं। अगेन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। वहां पे ये था कि ये कब परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये कि अगर इसके रूट्स इक्वल है, और इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो ठीक है, ये इसके 3 पार्ट्स गिवन है, हम कोई सा भी एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने यही करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, उसके लिए आपने ए बी सी की वैल्यू करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। This is the solution, part number, question number 4, part 3. Question number अच्छा लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 3k plus 2 x square minus 5 into k plus 1 x plus 2k plus 3। ठीक है, अब व्हाट इज a is 3k plus 2, 5 minus 5 into k plus 1 is the b and 2k plus 3 is equal to c। ठीक है, ये आपके पास a b c आ गया। अब देखिए आपको कहा गया है कि इक्वेशंस द रूट शुड बी इक्वल, तो इक्वल के लिए कंडीशन वही आएगी, द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज आएगा,
देन यू विल मल्टीप्लाई 3k + 2 2k + 3 ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब opening the formula of k + 1 whole square a² + b² + 2ab, multiply it. आपने 25 को इनसाइड द ब्रैकेट एंड -4 को इनसाइड द ब्रैकेट आपने मल्टीप्लाई किया, ये सब कुछ आपके आने के बाद दैट इज योर फाइनल इक्वेशन k² - 2k + 1, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी मिड टर्म ब्रेकेज की। अगर आपको मिड टर्म ब्रेकेज इजी लगता है आप वो कर लें, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी लगता है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। k - 1 = 0, सो आपके पास देखें k = 1 एंड k = 2, ठीक है। तो आपके पास k की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम, आपके पास वो सेम आएंगे, ठीक है, आपके पास इक्वल आएंगे, कहने का मतलब ये है। Okay, the next question is question number 5. Show that the equation x² + mxc whole square is equal to a² has equal roots if c² = a² into 1 + m²। उन्होंने ये कहा है कि इस आपने शो ये करना है कि इसके इक्वल रूट्स होंगे अगर आपके पास c² = a²। बेसिकली आप यहाँ पे बेसिकली आपने करना क्या है, आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपने जो सेकेंड इक्वेशन है ना c² = a² 1 + m², आपने ये चीज प्रूव करनी है, यानी एक तरह से आपको हिंट मिल गया कि ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, उन्होंने बता दिया कि रूट्स शुड बी इक्वल, तो इक्वल रूट्स के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को आप क्या कर सकते हैं, = 0 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या सॉल्व करेंगे, यू विल टेक दिस इक्वेशन, वी हैव गिवन mx + c² होल स्क्वायर = a, आपने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, a² + b² + 2ab = a², फिर m² x² c² 2mcx -a², इसको इधर ले = 0। अब देखिए ये x² और x² वाली टर्म सेम है, 1 + m² × x² + 2mcx + c² -a² = 0। अब देखिए ये जो x² के साथ है a + m², ये a बन गया, 2mc b बन गया, और c² - a² ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, c बन जाएगी। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है कि b² - 4ac = 0, आप = 0 कर दें, ठीक है। अब ये देखें b² - b² - 4ac, इसका स्क्वायर लेंगे, इट विल बी 4m² c² -4, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाया -4 से, यू हैव दिस इक्वेशन -4c² + 4a² + 4a² m²। अब चूंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द रूट्स आर इक्वल, सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को = 0 कर दिया, ठीक है। इक्वेशन को 0 करने के बाद क्या किया, 4 इज कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, -4 मीन्स कॉमन ले लिया, ये आपके पास इक्वेशन रहेगी। तो एक तो -4 इज नॉट = 0, यानी 4 को तो आप या दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दें, आपके पास अब ये इक्वेशन रहेगी है c² - a² - a² m² = 0। आप c को इधर ही रहने दें, इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे, देन यू विल टेक a² एज कॉमन, जब a² आप कॉमन लेंगे, द आंसर इज c² = a² + a² into 1 + m², and this is that we have to prove, ये देखें यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। सबसे पहले आपने हमने इस इक्वेशन को सॉल्व क्यों किया, देखें यहाँ पे x² था, लेकिन देखिए यहाँ पे ये x तो था लेकिन ये होल स्क्वायर था, तो हमारे पास जो a वाली टर्म होती है वो तो x² होती है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी x² आ रहा था, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसमें से a b c की वैल्यू हमने डिराइव की, then we will put in the value in the discriminant is equal to 0, और उसके बाद डायरेक्ट आपका बहुत आसानी के साथ आंसर आ गया, उसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं थी। Okay, then have a nice day. Allah Hafiz to all of you. Have a safe day.